We have seen practice set 1.2. Now we will start Venn diagrams. Venn diagrams are the diagrams which are used to show sets. Why diagrams are called as Venn diagrams? Because British logician John Venn first showed that set can be expressed with the help of figures, diagrams also, and therefore in the memory of this scientist, logician, it is referred as Venn diagram. ब्रिटिश साइंटिस्ट जॉन वेन ने सबसे पहले यह बताया था कि हम सेट डायग्राम का यूज करके भी बता सकते हैं. उसके वर्क को ध्यान में रखते हुए उन डायग्राम को वेन डायग्राम्स ऐसा कहा जाता है. वी कैन यूज वेन diagrams. We can use any type of diagram, means amoeba shape, circle, triangle, square, rectangle, oval shape, any diagram you can use. Example we will see. M is the set of vowels in English. हमारे पास ये एग्जाम्पल है. फिर से मैं वेन डायग्राम के बारे में बताता हूँ. ब्रिटिश लॉजिशियन फर्स्ट showed that the set can be shown by using the diagrams also. In the honor of this scientist, these diagrams are expressed as Venn diagrams. ब्रिटिश लॉजिशियन जो है जॉन वेन, उन्होंने कहा था कि सेट जो है डायग्राम यूज करके भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. उसके स्मरणार्थ उसके ये वर्क को ध्यान में रखते हुए इन डायग्राम को, इन फिगर्स को हम वेन डायग्राम्स कहते हैं. सेट के लिए हम अमीबा, सर्कल, ट्रायंगल, ओवल, स्क्वायर, रेक्टेंगल ऐसी कोई भी फिगर यूज कर सकते हैं, लेकिन फिगर शुड बी द क्लोज फिगर. ये M इज द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश है. तो ये वेन डायग्राम से हमारे को एक्सप्रेस करना. मैंने पहले बोला था हम सर्कल निकाल सकते, स्क्वायर निकाल सकते, रेक्टेंगल निकाल सकते, अमीबा शेप, कोई भी डायग्राम निकाल सकते, लेकिन कंडीशन ये है कि वो जो डायग्राम है क्लोज चाहिए. सेट का नाम बाहर भी लिखा तो भी चलता या अंदर लिखा तो भी चलता, डिपेंड अपॉन यू. द नेम ऑफ द सेट इज यम. अब वॉवेल्स क्या इंग्लिश में आपको पता है. ए, ई, आई, ओ, यू. ये हो गया हमारा सेट. इसको हमने क्या में एक्सप्रेस किया, हमने इसको वेन डायग्राम में एक्सप्रेस किया हुआ है. अब हम देखेंगे आगे का सेट, आगे का टाइप सबसेट. If we have two sets A and B, and each and every element of A lies in set B, then A is called as a subset of B. Let definition. Let A and B be any two sets, any two sets, any two sets if
element of set A belongs to or belongs to set B, if elements of set A, elements means every element of set A, every element of set A belongs to set B, then A is called subset of set B, or we may write, let A and B are any two sets. Let A and B are any two sets. If every element of set A belongs to set B, इसका मतलब क्या होगा? सेट A में का हर एलिमेंट अगर B में है तो हम A सेट को B का सबसेट कहते हैं. A is called as subset of B. अगर A और B दो कोई भी सेट है, अगर सेट A में का हर एलिमेंट सेट B के अंदर है तो हम सेट A को B का सबसेट कहते हैं. सिंबॉलिकली इट इज रिटन एज A सबसेट B. यह है सबसेट का सिंबल, A सबसेट B. हाउ टू रीड? A is subset of B, or you may write set A is a subset of set B. You can write here set also, or you can drop set word. A is subset of B. Symbolically it is written as example. Let M equals to example 1, 2, 3, and we have another set N equals to 1, 2, 3, 4, 5. We have two sets M equal to 1, 2, 3 and N equal to 1, 2, 3, 4, 5. If we observe example, if we observe each and every element of set M lies in set N. 1 M का एलिमेंट 1 N में, 2 N में है, 3 भी N में. इसका मतलब इसके पूरे के पूरे एलिमेंट क्या में? N में. Therefore M is subset of set N. Symbolically it is written as M is a subset of. इसको कैसा पढ़ेंगे? is a subset of set N. set M इसको पढ़ते समय is a subset of set N. M is subset of N. अब हम देखेंगे N है क्या? N है क्या? तो N के पूरे अगर एलिमेंट M में है तो N will be the subset of M. If each and every element of set N lies in set M, then we say that N is also a subset of M. We will check whether N is subset of M or not. हम चेक करेंगे N के पूरे एलिमेंट इसके अंदर है क्या. अगर N के पूरे एलिमेंट इसके अंदर है तो N ये M का सबसेट हो जाएगा. अब देखेंगे हम 1 है, 2 है, 3 भी है, 4, 5 ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जो इसमें नहीं है. इसका मतलब N is not a subset of M. क्रॉस करना है इसको. ये सबसेट का सिंबल, ये इज नॉट सबसेट ऑफ. इट इज रीड एज M is subset of set N. इसका रीडिंग N is not a subset of
of set m. Vertical line आ गई, इसका मतलब not. N is not a subset of set m. I think that you all understand these two examples. One example I have given, but we have taken two cases, whether m is subset or not. First case. Second, n is subset of m or not. Now we will continue. Next type, universal set. Universal set. It is denoted by symbol U. If there are few sets given to us, then the largest set among the given set, whose remaining set are the subset, then that largest set is known as universal set, and it is denoted by letter U. फिर से मैं बताता, अगर हमारे को कुछ सेट दिए हुए उसमें सबसे बड़ा सेट कि जिसके बचे हुए पूरे के पूरे सेट सबसेट है, तो उस लार्जेस्ट सबसे बड़े सेट को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं. और उससे कैसे बताते हैं, उसे दर्शाने के लिए हम यू ए अल्फ़ाबेट जो है कैपिटल अल्फ़ाबेट का यूज करते हैं. द ग्रेटेस्ट सेट, द बिगेस्ट सेट अमंग द गिवन सेट, whose remaining set are the subset, then that biggest set is called as the universal set. Example देखेंगे हम. Example, P equals to set of all residents in India. R is set of all resident in Rajasthan. You can drop A also. M is set of all resident in Madhya Pradesh. K is set of all residents in Maharashtra. You can drop A here. No need to write A. Rajasthan. K equal to set of all resident in Maharashtra. If you observe, you will find that this is the biggest set. P is the biggest set because all remaining sets belongs to this set. Every resident of Rajasthan belongs to the resident of India. Means R is subset of P. R is a subset of P. क्योंकि हम जब इंडिया की पॉपुलेशन काउंट करते हैं तब उसमें राजस्थान के पूरे लोगों की जो पॉपुलेशन है वो भी इंक्लूड रहती. वैसे ही जब हम इंडिया की पॉपुलेशन काउंट करते हैं तब एमपी में, मध्य प्रदेश में आने वाले जो भी रेसिडेंट है वह ऑटोमेटिक इंडिया के पॉपुलेशन में आए थे. मीन्स इंडिया की पॉपुलेशन बोलने के बाद उसमें ऑलरेडी एमपी की पॉपुलेशन जो है, मध्य प्रदेश की जो पॉपुलेशन है उसमें आ चुकी है. जब हम इंडिया की पॉपुलेशन लेते हैं तब उसके अंदर महाराष्ट्र के पॉपुलेशन भी इंक्लूड होते हैं. इसका मतलब महाराष्ट्र के सभी एलिमेंट्स ये इंडिया के सेट में आते. अगर हमने इसको ऑब्जर्व किया, set R, M, K, all these three sets are the subset of P. Set R, M, K are the subset of set P. Why?
because when we count the population of India, the population of India includes population of Rajasthan also, population of MP also, population of Maharashtra. जब हम इंडिया की पॉपुलेशन लेते हैं तब इन तीनों की पॉपुलेशन इसमें ऑटोमेटिक इंक्लूड हो जाती। इसका मतलब ये तीनों के तीनों जो सेट है इसके पूरे के पूरे एलिमेंट्स इसमें है। ये तीनों जो सेट है इसके पूरे के पूरे एलिमेंट्स इसके अंदर है। इसका मतलब क्या हो गया, ये तीनों के तीनों क्या हो गए, सबसेट हो गए किसके, पी के। Therefore P is the biggest set whose remaining these three sets are the subset. Therefore P is called as universal set। जनरली हम यहाँ पे यू का इस्तेमाल करते नहीं, तुम्हारे डायरेक्ट ध्यान में आ जाएंगे ये यूनिवर्सल सेट है, इसलिए मैंने यू न लेते हुए पी लिया। जनरली हम यू का इस्तेमाल करते हैं। फिर से मैं डेफिनेशन एंड करने के पहले बताना चाहता हूँ, यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं, जो दिए हुए सेट में सबसे बड़ा सेट है जिसके बचे हुए पूरे के पूरे सबसेट है। तो ऐसा जो बड़ा सेट है जिसके बचे हुए पूरे सेट सबसेट है, ऐसे वो बड़े सेट को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। द बिगेस्ट लार्जेस्ट सेट अमंग द गिवन सेट हुज रिमेनिंग सेट्स आर द सबसेट, सच ए लार्जेस्ट सेट is called as the universal set and it is denoted by letter U, capital letter U। इसको कैसा पढ़ेंगे, R is subset of set P, M is subset of set P, K is subset of set P, P is called universal set। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो देखेंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट। हमारा जो नेक्स्ट पीरियड है ना उसमें हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट और डिजॉइंट सेट। थैंक यू।